एनसीईआरटी के अलावा भी कोई ऐसे बुक्स उनको प्रेफर करना चाहिए। व्हाट वाज द लेवल ऑफ दिस एग्जाम्स? ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? पेड बैच लिया था या खुद It was सेल्फ nothing स्टडी से paid. हो जाता है? बहुत स्ट्रेस आता रहता है इस टाइम, इस पीक मंथ ऑफ सीयूईटी के। हाँ, स्ट्रेस एक्चुअली नॉर्मल है। जिससे कॉन्फिडेंट है ना कि उसने सब कुछ पढ़ा है, वो कर ही लेगा। हेलो एवरीवन, आई एम उज्ज्वल दा, सेकेंड ईयर अंडरग्रेड फ्रॉम सेंट स्टीफेंस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो आज मेरे साथ है मिरांडा हाउस की एक स्टूडेंट जो शेयर करने वाली अपनी सीयूईटी की जर्नी, कैसे उनका सफ़र रहा जिन्होंने मिरांडा हाउस जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज को पाया। तो चलिए मैं उनसे बात करता हूँ। तो रूपाली, आई वुड लाइक टू टेल योर फ्रेंड्स अबाउट योरसेल्फ। So, hello buddies, I'm Rupali from Miranda House. So basically Miranda House is a diverse in culture. Everything is like unique in them. Because every time when you enter in the campus, you find something which was happening over there every time. So it was like a fantasy for me. Because getting that college, which was number one Skulls College in DU, is literally very admiring thing for me. And How was your experience in Miranda House? it was nice. It's like more likely to be because it gives you more opportunities to diverse in yourself and to know who you are. So basically, if you are aspiring for more activities, then that's the great place for you. You can go for it. तो जैसे कि आप फर्स्ट स्टूडेंट थे जिन्होंने 1000 के पेपर में से वो स्कोर करके आए हैं, राइट? Yeah. तो व्हाट वाज योर डोमेन सब्जेक्ट्स इन सीयूईटी? My domain subject was biology, physics, chemistry, English, and general aptitude. Sort of colleges, yeah, but more preference is in DU. Because DU is like if you get the highest score, then you'll be able to cross the cutoff. So GAT helps a lot in this. But yeah, with all four subjects which you're taking as your domain, with that you have to take GAT as must. Because I think that it helped me, so it will help you as well. तो जैसे कि आपने फर्स्ट स्टूडेंट थे जिन्होंने 2026 के एग्ज़ाम में, सीयूईटी के एग्ज़ाम में वो 1000 का पेपर दिए थे। हाउ डू यू मैनेज योर Actually, 12th alongside your boards? Actually, I was a science student and that too PCB student. So when I was preparing for it, it was like I have to focus more on physics because it was theory. It was not theory plus the calculation work. So it took time. And for chemistry, I go for just for the question practicing, and by question practicing, it was all through every question I was able to solve. And for biology, it was very mandatory for you to read your NCERT books through thoroughly for at least 4 to 5 times because it helps you clarifying your concepts to a large extent. Before solving any question paper, just go through each and every concepts very clearly and then you can jump on to your questions. क्या जो सीयूईटी 2006 में बच्चे जो आपके जूनियर्स आने वाले, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो बायोलॉजी के कुछ एनसीईआरटी ही पढ़े, उससे हो जाएगा या कोई? I think that biology NCERT is enough for CUET. If you are going for NEET, then that's some sort of different cases. But yeah, for CUET, NCERT is enough. If you have read it very conceptually and very deeply. And और फिजिक्स का क्या आपका स्टडी? physics, I would say कि physics में NCERT मत पढ़ना. Yeah, you can read the last page. That's a summary of that chapter, and you can make out questions as much as you can. And yeah, बस उतना ही. Question practice ज़्यादा से ज़्यादा करो physics में और थोड़ा कॉन्सेप्ट में डीपली जाओ और डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स में डेफिनेशन बहुत आते हैं. So yeah, definition wise question because now the exam is CBT mode, right? So for CBT mode में it's like you have given the only 1.5 hour or 1 hour just. So in that you have to practice, you have to solve the question and give the answer in a very quick manner. So I would say कि question practice ज़्यादा कर numerical वाला क्योंकि उससे ज़्यादा question What's any source okay. do you refer? I basically referred the Oswald books for CUET and yeah, I practiced whole questions from there only
and the NCERT back exercise questions for physics. I solved it, and for chemistry as well. I solved it, and that's all. तो आपने लाइफ साइंस के लिए मिरांडा हाउस ही क्यों चुना? Why you choose Miranda House in life science? Actually, I wanted a biotechnology course, Oh. but I have to get into some of the DU colleges. So biotech was not there in DU, so I have to take the life science for it. And through life science, I think that I'll get into the biotech, MSc biotech. So yeah, Miranda was my first preference because life science was only the option over there. And I could too take microbiology, but I think that I was not interested in that Yes. because I wanted to get more information regarding my studies. So yeah, I opted life science in Miranda, and that was my first preference. And second was the Hindu college. It Okay. was zoology, but I don't want to do zoology, so I opted that. तो आपने कोई ऐसे पेड बैच लिया था या खुद It was सेल्फ nothing स्टडी से हो paid. जाता? No, it was all self studies. If I could have some help, then I have taken from the YouTube. Do you And prefer any YouTube channel I do prefer PW. or PW? Yeah, because I was a NEET aspirant too, so I was Okay. basically studying for NEET. But CUT was my second option, so I opted that. और But I बहुत didn't get से it. स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि मॉक टेस्ट कहाँ से दूँ? Mock test. मॉक टेस्ट आपने कितना दिया था? You could give mock test like 40 or 50. It was enough. Yeah. But That's PW सोर्स पे CUT हाँ। वाला एक चैनल है, उस पे मतलब अगर आप जाओगे तो फिर वहाँ पे मॉक टेस्ट रहते हैं, तो फिर आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप ऑसवाल्ड बुक्स ले सकते हो जिसमें सारे हाँ, yes. पेपर्स का रहता है, तो Means उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहते फिजिकली हैं. टेस्ट ना वो हाँ. जो स्टूडेंट्स है जो 2026 में प्रिपेयर कर रहे हैं CUT के एग्ज़ाम के लिए, तो वो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो भी है, तो वो कैसे, क्योंकि एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा जा सकता, राइट? तो उनमें कैसे आप टाइम को मैनेज किए और कैसे एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स आप पढ़ते थे? बेसिकली एक दिन में बस 2 सब्जेक्ट, यस. बट 2 सब्जेक्ट में भी आप ले लो कि बायो मैंडेटरी था. बायो वाज लाइक ए मॉर्निंग डोज. इट्स लाइक मॉर्निंग में हमेशा 2 घंटे तो बायो पढ़ना ही है, कैसे भी पढ़ो बट पढ़ना है. इट्स लाइक अगर आप 5 बजे उठने वाले हो, अर्ली मॉर्निंग बर्थ हो, देन यू कैन गेट इट 5 to 7. इफ़ यू आर लेट वाला तो 9 to 11. उसके बाद फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स इट वाज शिफ्टिंग. इट्स लाइक कि अगर मेरे को लगता था कि मेरा केमिस्ट्री में प्रिपरेशन सही है तो फिर मैं फिजिक्स को ऑप्ट करती थी, बट अल्टरनेट डेज पे चलता था, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन फिजिक्स. एंड केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट अगर मैं एक दिन में पढ़ रही हूँ ना, तो फिर इसलिए केमिस्ट्री को मैं बस 6 घंटे देती थी. 6 घंटे में नॉट लाइक थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ लिया, उसके बाद फिर उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए, उसके बाद फिर बहुत नहीं बनते थे, फिर उसका सॉल्यूशन देखकर फिर उसको रिपीटेशन भी लाना, उसके बाद फिर एट नाइट में जाकर सुबह जितना भी पढ़ा है उसको एक पेपर पे सोने से पहले लिख लो, और फिर दिमाग में बैठ जाएगा ऐसे जैसे कि कभी भूला ही नहीं था. तो वो था. और फिज़िक्स में अल्टरनेट डेज पे होता था, तो फिर उसमें भी मेरे को 8 आवर्स लग जाते थे, क्योंकि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट थोड़े से टफ होते थे और उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता था. और आई कुड से कि अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिज्म पोर्शन, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो पहला चैप्टर है 2 और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, उसके क्वेश्चन तो मस्त आते हैं. एग्जाम CUT एग्जाम में मस्त आते हैं. मॉडर्न फिजिक्स भाई, मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है ना वो वाला, और पूरा मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियर से बहुत कम आते हैं, लेकिन हाँ एक ही आते हैं उससे. और एटॉमिक फिजिक्स एटम्स हाँ, एटम्स वाले में एंड न्यूक्लियर ऐसे कुछ चैप्टर्स. बैंड वाला जो थ्योरी है ना, हाइड्रोजन बैंड वाला, उससे क्वेश्चंस आते हैं. एक्चुअली 12th का फिजिक्स 3 डोमेन में डिवाइडेड है. पहला इलेक्ट्रिक वाला, फिर करंट वाला, फिर मैग्नेटिज्म, उसके बाद फिर मॉडर्न फिजिक्स. तो फिर मॉडर्न फिजिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम, CUT के एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं. और फिर उसके बाद फिर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा आते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से. उसके बाद फिर मैग्नेटिज्म से छोटा ही पोर्शन आता है, बट वो क्रिस्प होता है, कंसाइज होता है, उसमें थ्योरी अगर दिमाग में ना होना तो तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे. तो फिर आई कुड से कि चारों डोमेन को साथ में लेके चलना मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए बता रही हूँ. आपके टाइम में कैसा लेवल था आपको देखने को मिला था CUT एग्जाम में?
CUT के एग्ज़ाम में फिज़िक्स का लेवल थोड़ा सा हाई था. इट्स लाइक स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन थे और टाइम बहुत कम था, कैलकुलेशन ज़्यादा करना था, तो फिर उसके लिए प्रिपेयर रहना. और केमिस्ट्री में थ्योरी अच्छे से पढ़ के क्या जाना. केमिकल रिएक्शन उससे था क्वेश्चन? केमिस्ट्री में हाँ, क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आपको देखने में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 14 to 15 क्वेश्चंस थे. और इट्स लाइक शिफ्ट वाइज डिवाइडेड था ना क्वेश्चन. तो फिर किसी शिफ्ट में इनऑर्गेनिक से ज़्यादा, किसी की शिफ्ट में ऑर्गेनिक से ज़्यादा, मेरे शिफ्ट में फिजिकल से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, तो आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 14 क्वेश्चंस आए थे. और इनऑर्गेनिक से बेसिकली थ्योरी वाइज क्वेश्चंस था, लाइक कंपैरेटिव एटॉमिक साइज का और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, बस. और बॉटनी में इट वाज ऑल थ्रू द बुक, सब कुछ बुक से था. अगर किसी ने अच्छे से बुक पढ़ा होगा तो वो सारा क्वेश्चन सही कर लेगा. हाँ, क्योंकि बायोलॉजी एनसीईआरटी मोर देन इनफ है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ो. लैंग्वेज वाज इंग्लिश. ओके. सो इंग्लिश में बेसिकली तो ग्रामर पोर्शन था एंड एंटोनिम सिनोनिम था. अगर तुम्हारा इंग्लिश अच्छा है, तुम एंटोनिम सिनोनिम पे कमांड कर लेते हो, तो फिर इसलिए एक पैराग्राफ रहता है ना. कैसे मतलब कैसे बच्चे जो अभी स्टार्ट ही करेंगे सीयूटी के प्रिपरेशन, स्टार्ट तो करेंगे. इंग्लिश के लिए क्या आपका रहेगा? अनसीन पैसेजेस बहुत ज़्यादा सॉल्व करो. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट? हाँ, एक दिन में 1 या 2 कर लो, सुबह 1 कर लेना, शाम में 1 कर लेना. एंड देन फिर उसमें जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, न्यू वर्ड्स, उसके एंटोनिम सिनोनिम्स याद करके जाना, क्योंकि क्वेश्चंस उसी से आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. एंड देन फिर एक डबल, इट्स लाइक मीनिंग वर्ड्स वाला, उसका सिनोनिम्स वाला, उसमें मेरा गलती हुआ था, तो फिर वो अच्छे से पढ़ के जाना. कोई ऐसे बुक या कोई यूट्यूब चैनल से आपने पढ़ा था? मैंने ऑसवाल सॉल्व किया था. ओके. हाँ. और एंड इट्स लाइक कि अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है. इफ यू आर कीन टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स और कीन टू एक्स्ट्रा करिकुलर हाँ, एक्टिविटीज. यस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. यहाँ पे भी बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं. ओके. फर्स्ट ईयर में तो इसी तरह फर्स्ट ईयर चला जाता है. यस. एक्चुअली फर्स्ट ईयर इज लाइक कि यू आर जस्ट अज्यूमिंग कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, तो फिर उसको पहले माइंड में बैकअप करो. बट कुछ स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, जो पहले ही आकर के अपना झंडा गाड़ के चले जाते हैं. तो फिर वैसे भी अगर आप हो तो फिर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा. तो आपने लाइफ साइंस ही क्यों चुना, मतलब? लाइफ साइंस एंड उसका फ्यूचर में कुछ ऐसे? हाँ, लाइफ साइंस में बेसिकली आई वांट टू बिकम अ रिसर्चर, सो दैट्स व्हाई आई ऑप्ट फॉर लाइफ साइंस. ओके. तो जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जूनियर्स, उनको आप लास्ट में क्या एडवाइस देना चाहेंगे? वो ऐसा मिस्टेक्स कुछ ना करे जिससे उनको वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा. आई वुड से कि जब भी एग्जाम में जाना, सीबीटी बोर्ड है, राइट? हाँ. तो बी प्रिपेयर्ड कि तुम्हारे पास उतना ही टाइम है, उससे ज़्यादा तुम्हारा एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि वो टाइम खत्म होते ही टाइम मैनेजमेंट, राइट, पेपर बंद हो जाएगा. तो फिर बेसिकली कि अपने क्वेश्चंस अच्छे से और मार्क करके दिमाग में रखना. एंड देन अगर लास्ट में तुम्हें कुछ एंट्री भी करनी है, तो फिर तुम एक पेपर वहाँ मिलता है, तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख लो, और फिर जो आंसर में तुमको परफेक्टली लग रहा है कि वो सही है, उसी को मार्क करना. और फिर जो लग रहा है गलत है, डाउट है, उसको रेस्ट के लिए छोड़ दो. एंड देन लास्ट 15 मिनट्स बचा के रखो, और लास्ट 15 मिनट्स में अपना जो भी आंसर जिसमें तुमको क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा था, उसको फिर से रीराइट करके फिर से अश्योर हो जाओ उस आंसर के थ्रू. एंड देन फिर टिक मार्क करके एंड देन लास्ट सबमिट कर दो. बट हाँ, 5 मिनट्स पहले कर देना, क्योंकि बहुत बैकअप होते हैं दिमाग में कि भाई ये हो गया. लास्ट टाइम में हम गलत भी आंसर मार्क कर देते हैं, तो इसलिए. थैंक यू सो मच रूपाली, आप मेरे चैनल में आने के लिए और अपने बच्चों को जो आने वाले हैं उनको गाइडेंस देने के लिए. थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट यू. एक्चुअली इट इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, कि इससे पहले मैं कहीं बोल रही, तो फिर या आई वुड लाइक टू गाइड एवरी माई स्मॉल सिबलिंग्स हु आर कमिंग हियर. सो या दैट्स नाइस. तो अपने बच्चों को जो जूनियर्स आने वाले हैं, उनको आप लास्ट वर्ड्स क्या बोलना चाहेंगे? किस तरह वो अच्छे प्रिपरेशन करें और किस तरह वो एक्चुअली वो आ सकते हैं? डोंट टेक एनी टेंशन, सब कुछ हो जाता है, बस पढ़ाई करते रहना, कंसिस्टेंटली रहना. इसलिए कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करना कि आज ये पढ़ लिया, उसके बाद फिर 1 हफ्ते बाद पढ़ रहा है. इसमें होता क्या है कि तुम्हारे मेमोरी में ब्रेकेज आ जाता है. अगर तुम किसी एक चीज़ को कंटिन्यूसली कर रहे हो, तो फिर इसलिए कि तुम्हारे दिमाग में धीरे धीरे रैंडमली चीज़ें भर रही होती है, बट फिर एक गैप के बाद वो सब कुछ वैनिश हो जाता है. सो कंसिस्टेंटली पढ़ना उसको,
छोड़ना मत। और एग्ज़ाम इजी ही आता है, जो पढ़ के जाता है उसके लिए इजी आता है, जो नहीं पढ़ के जाता है वो भगवान भरोसे जाता है। एक्चुअली But बच्चों का फिर- बहुत स्ट्रेस आता रहता है इस टाइम, इस पीक मंथ्स ऑफ सीयूईटी जो है। हाँ, स्ट्रेस एक्चुअली ये नॉर्मल है, सारे एग्जाम से पहले स्ट्रेस आता है, लेकिन फिर जिससे कॉन्फिडेंट है ना कि उसने सब कुछ पढ़ा है वो कर ही लेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन Yes. पेपर बस देखकर दिमाग में हिट करता है आंसर, अगर उसने पढ़ा है तो। अगर नहीं पढ़ा तो फिर तब नहीं हिट करता, और फिर तब ज़्यादा एंजाइटी बढ़ जाती है। बट या पढ़ के अच्छे से जाओ और दिमाग में ज़्यादा टेंशन मत लेना, और फिर सब कुछ हो जाएगा अपने आप। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपने मिरांडा हाउस की रूपाली से सुना, जो आप उसको अप्लाई भी करिए ना कि आप सुन के रह गए बस हो गए। हाँ, और एक रूपाली जैसे बोला कि कंसिस्टेंट, यस, कंसिस्टेंट इज़ द की ऑफ द सक्सेस। तो आप कंसिस्टेंट रहो और रोज़ थोड़े थोड़े पढ़ते रहो, बट डेली पढ़ो, ठीक है। तो आई होप आप सभी को वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जिससे उनको भी मदद मिल सके, हेल्प मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। बाय बाय।